Hello everyone and welcome back to my channel once again. This video is going to be both in Hindi as well as in English. This time I'm making the English version first and then the Hindi version later on. I'll mention it in the timeline so that Hindi viewers can skip this video and watch the Hindi part. In the last video I talked about 9 easy ways that any student can use to earn extra money apart from the part-time job that you are already doing, that they're already doing. So those 9 ways were so simple, and if you have some sort of skill, you can perform those jobs to earn some side income. For example, I use YouTube as a side income source, but I haven't earned much money in this because it ultimately depends on you how long you will watch the ads, or if you will press the like button. It will help me out because that's the only side income source I'm using currently out of those 9 ways. So help me out by liking this video so that it can reach a larger audience, so that I can earn some revenue. It will be of lot of help to me. So this video I have total 18 ways by which you can save a lot of money as a student, but I cannot cover those 18 ways in one video, so I have broken this video in two parts. So in the first video I'll mention the 9 ways, and in the second part, the next video that will come after this, I'll mention 9 more ways by which you can manage your finances and save some money. So let's get started. And I have these, last time I couldn't focus, so I have this written in my phone so I can read it out and tell those to you. So the first one is, make a financial expense sheet to track where your money is going. For example, if you're spending a lot of money using credit cards, cash, and you're not keeping account of all that money, you'll not be able to track where your money is actually going, and if you'll not track it, you'll not be able to save it. So what I can suggest you is to make an Excel sheet, or in today's world there are so many applications that you can download on your phone and use that to write all your expenses so that you can keep a track of it. So the second one is, do not buy a car as soon as you land in Canada. There are so many people I have seen buying cars and later on they suffer because, for example, if you're not getting a part-time job, you will not be having the money to pay back for the insurance, for the price of the car that goes monthly, and fuel. So student will suffer because if they will not be having money to pay back, it's really gonna hurt. So this is the second way by which you can save some money. The third one is also linked to the second one. Instead of buying a car, what you can do is you can choose public transportation. For example, in Canada, as per my experience, public transportation is very good. The buses are comfortable, and in the student life we have so much energy, we can spend like 1 or 2 hours traveling because it saves a lot of money. And if your college is giving you the pass for the public transportation, then why not to use it? So this is the third one. The fourth one is, this is related to food. Oh my god, I'm hungry again. Eat preferably at home or spend less on food from restaurant. I'm telling you, but I think I need to focus on this more because lately I've been eating a lot from outside. Like I order a lot. The minimum that I spend on the food is $20, which is not less if you are ordering every week. So it costs around $80. So I need to save that money. Instead of buying food from the restaurant, what you can do is you can either make food by your own, or try to eat less outside. So this is the fourth one. Fifth one is, yeah, this is the interesting one. Try to purchase from big stores like Walmart, Freshco, No Frills, Indian stores, because what happens is, in the convenience stores like Circle K here, and there are so many, what happens is, as the name suggests, convenience comes at a cost. For example, if you are buying something from a gas station, it's gonna cost you more because it's so easy to find stuff there, and with that ease comes the cost. And similar to this is Shoppers Drug Mart. It is also costly,
but less costlier than convenience stores. So wherever you can try to purchase from Walmart, like big stores, because they buy in large volume, and they get it at a lower cost than other convenience stores. So I've seen it a lot. I've seen student coming, because I worked at a gas station. I know people used to buy stuff like cold drinks and chips. Uh, it was costly, man. It was. Sixth one is, try not to go to shopping malls. Now, it doesn't mean I'm saying there is no need to go to shopping malls, but there is a need to restrict yourself from the temptation that comes when you visit a shopping mall, because there are so many so many things around you, and you will see like 25% off, like sale going on, and you will feel like, even if there is no need in your life for that product, you will go and buy because it's on sale. But when you will come home and few days later you will not be using that product, you will feel that the money went into drain. Seventh one is, keep the control of your credit card. Whenever you get a credit card, some people feel like they are the king of the world, but they do not care about, because that money has to be paid back also. So keep the track of that. This is the most important expense, I would say, apart from the car and whatever I just talked about, because some people never pay on time, and this reduces their credit limit, which is a very 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 important thing when you're going to buy a home or any expensive thing where you need to have a credit check. Eighth one is like, use the pass that college or university gives for public transportation. I have already covered it. Ninth way is, by doing a part-time job, you can, instead of saving, you can earn more money. Then you can save that money. But if you are rich, you can skip this part. But if you are lazy, you're just lying on your bed doing nothing, I would suggest you, I will not force you because I'm no one. Uh, but I would recommend, yeah, you should do a part-time job, or at least you're not doing a part-time job, you can do the volunteering work, because it will help you develop new connections for anything. Like, it can help you later on in your job, it can help you develop communication skills with people. So these are the 9 ways. If you liked any of them, just help me by pressing the like button and subscribe button, and so that I can earn some side revenue. हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, जो मैंने अभी 9 मिनट पहले बताया इंग्लिश में, वही मैं आपको अब हिंदी में बताऊंगा कि एक्स्ट्रा मनी आप कैसे सेव कर सकते हो अपनी स्टूडेंट लाइफ में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि आप एक्स्ट्रा मनी अर्न कैसे कर सकते हो, अब एक्स्ट्रा मनी आप थोड़ी सेव कैसे कर सकते हो उसकी बात करते हैं। लास्ट वीडियो में क्या था, आपको मैंने साइड हसल्स बताई थी कि ये जॉब कर लो, ये जॉब कर लो, या फिर ये चैनल स्टार्ट कर लो। जैसे मैं यूट्यूब पे काम करता हूँ, तो यूट्यूब से जो एडसेंस रेवेन्यू आता है, वैसे तो मैंने कुछ कमाया नहीं उससे, जमा ही कुछ नहीं अर्निंग हुई उससे मेरी, बट हाँ, अगर आप लाइक कर दोगे वीडियो को तो ये वीडियो ज़्यादातर आगे पहुँचेगी और उस पर ज़्यादा एड्स चलेंगी, जितने लोगों को ज़्यादा दिखेगी उतना मैं थोड़ा अर्न कर पाऊँगा। तो आपके ऊपर है, कोई फोर्स नहीं कर रहा मैं आपको। अगर आपने करनी है लाइक तो प्रेस कर देना लाइक बटन। चलो वीडियो शुरू कर देते हैं फटाफट। पहला तरीका जो है, आजकल आपको पता है फ़ोन्स में ऐसी ऐप्स आने लगी हैं जिसमें आप अपने फाइनेंसिस का ट्रैक रख सकते हो। फ़ोन पे नहीं तो अपने कंप्यूटर में एक्सेल पे कर सकते हो। कुछ भी करके आपको क्या करना है, अपने एक्सपेंस शीट बनानी है जिसमें आप ट्रैक करोगे कि आपका एक महीने में कितना खर्चा हो रहा है। बिकॉज अगर आप ट्रैक नहीं कर रहे हो उस चीज़ को, तो आपको पता नहीं लगेगा कि आपकी मनी कहाँ स्पेंड हो रही है, और हो सकता है आपकी मनी किसी ऐसी जगह जा रही हो जहाँ पे आपको पता भी ना हो, आप दे ही जा रहे हो बस पैसे, और वो अननेसेसरी जा रहे हैं। तो उसका ट्रैक करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो स्पेशली इन स्टूडेंट लाइफ, तो उस बात का ध्यान रखना। तो ये पहला तरीका था। अब दूसरे तरीके की बात करते हैं, दूसरे तरीके के बारे में बात करते हैं। सेकंड है कि आपको गाड़ी नहीं खरीदनी आते ही। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो कोई चक्कर ही नहीं, लेकिन अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हो, तो जैसे आप कनाडा लैंड कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आपको अगले महीने ही गाड़ी ले लेनी है। हाँ, अगर आप गाड़ी लेते हो तो उसमें खर्चा कितना होता है, आपको इंश्योरेंस पे करना होता है, आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, आपको मतलब जो मंथली जो पेमेंट जाती है गाड़ी की, वो कम नहीं होती है, ज़्यादा ही होती है वो भी। तो आई वुड नॉट रिकमेंड टू बाय अ कार एज सुन एज यू लैंड इन कैनेडा। थर्ड वन है जो इससे रिलेटेड है
कि यूज़ करो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एक तो चीप है, उसके पास बनते हैं, एंड स्टूडेंट लाइफ में एनर्जी बहुत होती है लोगों के पास, चलो जी 1-2 घंटे तो ऐसे ही पार कर देते हैं। तो इससे अच्छा थोड़े पैसे अगर आपके अगर बच सकें तो ट्राई टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। और जितना मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आज तक यूज़ किया है, क्योंकि मैंने अभी तक गाड़ी खरीदी नहीं है, तो मुझे ऑलमोस्ट 1.5 साल होने वाला है, विच मीन्स मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन रिलायबल लगा, अच्छा लगा मुझे, और सीट्स कंफर्टेबल हैं एंड सेफ्टी पूरी रहती है बसेस में भी। तो वाई नॉट कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करो। तो ये थर्ड तरीका था। चौथा तरीका है जो है वो है कि खाना, फूड जो है इज़ अ मेजर एक्सपेंस। तो बाहर ज़्यादा खाने से अच्छा आप अपना खुद घर पे बना सकते हो तो घर पे बना लो, वरना अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रोसरी शेयर कर लो, इससे आपके कुछ पैसे बच जाएंगे। बिकॉज हर हर हफ्ते बाहर से खाना और हर दिन बाहर से खाना यहाँ पे बहुत महंगा पड़ सकता है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बिकॉज मुझे भी इस चीज़ पे कंट्रोल करना है। मैं हर हफ्ते कम से कम $20-22 का ऑर्डर कर लेता हूँ बाहर से, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। एक तो बाहर का खाना आपको पता है हेल्दी नहीं होता ज़्यादा, एंड अगर आप हफ्ते में $20-22 खर्च कर रहे हो तो महीने के एंड तक वो $100 बन जाते हैं अगर पर वीक भी आप ऑर्डर करते हो। तो इससे अच्छा आप थोड़ा कंट्रोल करो उस चीज़ पे, बाकी आपके ऊपर है। एंड अगर आपको एक्सट्रीम कुछ ज़रूरी चाहिए, मतलब आप नहीं बना पा रहे आज, तो वो चलता है, बट अगर आप सेव कर सकते हो तो द बेस्ट इज़ टू कुक योर सेल्फ और शेयर ग्रोसरीज विद योर फ्रेंड्स। पांचवा तरीका है जो है वो है कि आपको जब भी अपनी ग्रोसरीज वगैरह बाय करनी है या फिर आपको हैवी अमाउंट में कहीं बाय करना है, तो ट्राई टू बाय कि आप वॉलमार्ट जाओ या फ्रेश को जाओ या कॉस्ट को जाओ, इंडियन स्टोर चले जाओ जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, सामान की कॉस्ट इनको कम पड़ती है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में बाय करते हैं। तो उससे क्या होता है, बायर्स को है जो बेनिफिट पड़ता है एज़ कम्पेयर टू एक्सपेंसिव स्टोर्स लाइक शॉपर्स डग मार्ट और जो कन्वीनियंस स्टोर्स होते हैं। बिकॉज वहाँ पे क्या होता है, अगर आप कन्वीनियंस में लाइक अ प्रीमियम थिंग, क्योंकि आपको कन्वीनियंस स्टोर में घुसते ही आपको जो चीज़ चाहिए वो आसपास ही आपको पड़ी मिल जाएगी। जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह मैंने देखे हैं स्टूडेंट्स वगैरह रात को नाइट शिफ्ट में आते हुए, बिकॉज आई वर्क, मैंने गैस स्टेशन में काम किया हुआ है, तो वो चीज़ बहुत महंगी पड़ती है। तो आपको वहाँ पैसे सेव ज़रूर करने हैं अपने, जब आप कर सकते हो। अगर वही फिर अगर आपको एब्सोल्यूट नेसेसरी है तो आप खरीदोगे भी उन जगहों से, बट अगर नहीं है तो अवॉइड करो। सिक्स्थ है जी, शॉपिंग मॉल्स पे थोड़ा कंट्रोल रखना। अब जब भी जाओगे आपके पास आसपास ऐसे पोस्टर लगे होंगे शॉप्स पे लाइक 25% ऑफ, 50% ऑफ, 70% ऑफ। तो उससे क्या होता है, मन में एक खुशी सी उठती है कि यार आज बाय कर लेते हैं कुछ, क्योंकि सब कुछ सेल पे है। सेल पे होने का ये मतलब नहीं, आपको पता ही है कि आपको कि अगर चीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए एक्चुअली में। तो होता क्या है, आप ले तो आते हो सेल के नाम पे, बट बाद में अगर आपको उस चीज़ को यूज़ नहीं करते तो आप सोचते हो कि यार ये तो फालतू में आ गई, इसका तो मेरे पास कोई यूज़ ही नहीं था। तो शॉपिंग मॉल्स में ज़रा जब जाओ तो थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल करके जाना। पैसे बहुत हैं तो कोई चक्कर ही नहीं, नहीं है तो थोड़ा कंट्रोल। सेवन्थ वे है जी, कीप कंट्रोल ऑफ योर क्रेडिट कार्ड। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्रेडिट कार्ड की करने वालों में। अब क्या होता है, जब क्रेडिट कार्ड खरीदते हो, अब ये नहीं आपको क्रेडिट लिमिट मिल गई $1000-2000 की तो आप सारे उड़ा दो, उड़ा भी सकते हो, पर पे भी तो आपने ही करने हैं बैंक को। और अगर आपके पास जॉब नहीं है या फिर आप टाइमली पे नहीं करते, आप लेज़ी हो, आप भूल जाते हो, आपने प्री ऑथराइज पेमेंट नहीं कर रखी, तो वो डेट निकल जाती है पेमेंट की, और क्या होता है ऐसी चीज़ों से क्रेडिट लिमिट आपकी ख़राब होती है, और आपको क्या बोलते हैं उसको, क्रेडिट स्कोर। क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने कोई घर लेना है या फिर कोई एक्सपेंसिव चीज़ लेनी है, यहाँ पे आपको क्रेडिट चेक करवाना पड़ता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर पुअर है तो बहुत मुश्किल आती है भाई सामान बाय करने में, एक्सपेंसिव चीज़ें यहाँ पे। तो क्रेडिट कार्ड का खास ख्याल रखना। एट्थ है जी, जैसे मैंने थर्ड पार्ट में बताया था कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करो, तो ऐसे ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है वो पास देती हैं आपको, कई यूनिवर्सिटी कई कॉलेजेस, तो उस पास को यूज़ करो। जैसे मैंने पहले डिस्कस कर लिया पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, तो वो चीप पड़ता है। नाइन्थ है वर्क पार्ट टाइम। अगर आपके पास एबिलिटी है, आपके पास टाइम है, आप कुछ और नहीं कर रहे घर पे, तो वाई नॉट टू वर्क पार्ट टाइम, कि क्यों ना पार्ट टाइम जॉब करी जाए। और अगर आप पार्ट टाइम जॉब नहीं करना चाहते, आप वॉलंटियर वर्क कर सकते हो। वहाँ पे क्या होगा, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने का मौका मिलेगा और नेटवर्किंग के ज़्यादा चांसेस हैं।
और नेटवर्किंग एज यू नो कनाडा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ 9 तरीके थे, पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर ठोक देना एक, ताकि वीडियो आगे पहुँचे, ज़्यादा ऐड चलें और आई कैन अर्न सम रेवेन्यू फ्रॉम दैट इफ़ यू वांट टू हेल्प मी। नो, नॉट एब्सोल्यूट नेसेसिटी। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट भी इसका आएगा क्योंकि मैं 9 तरीके और बताने वाला हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।